when in tea and trade with China. Full stop, right? Company remained just the administrative body for administration of the possessions of British government in India. मतलब कंपनी की टेरिटरीज ले ली, जब तक सम फाइनल अरेंजमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, कंपनी विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इसका मेन सिग्निफिकेंस है completely ending the monopoly and just reducing company the administrative body. तो अब ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है, which act. अब नेक्स्ट लिखो changes in the administration. तो फर्स्ट, right now the president of board of control will be known as the Minister of Indian Affairs. Full stop, right? Board of control will be supervising all administrative affairs of India. अब सेकेंड पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल will now be called as, ये भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं, as गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. Who was first Governor General? Bentinck, Lord William Bentinck. ठीक है, अब इसी में लिखो, राइट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल टू बी नोन एज Government of India. Next, लिखो, next point, beginning of the real colonization. Beginning of the real colonization. अब अंडर रियल colonization means, right, now British could settle freely. Now British could settle freely in India. पहले परमिशन और ये सब, now you can freely settle, you can make it as a colony in concrete sense. Now next, right, further centralization.
as Madras and Bombay lost legislative powers. Now next, right, लिखो addition of the law member, addition of the law member as the fourth member in the council to codify Indian laws. Right, led to the establishment of first law commission under Lord Macaulay. First law commission under Lord Macaulay. So he is a legislative member. So Lord Macaulay, first law member. So only as a legislative council, not as a executive council. So here you write, इसी में लिख दो, only as a legislative, या only for the legislative function, only for the legislative function. अब लॉ मेंबर जब लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा तभी होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं. तो राइट, इट ऑल्सो सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ the separation of the legislative and executive functions. और इसके कुछ सिग्निफिकेंस लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट. Significance. Right. First act to give share to the Indians in company's services. Next, right, act made provision for abolition of slavery in India. Next, rules regarding the establishment and regulation of the works of Christian missionaries. ठीक है, तो अब तो कुछ बचा नहीं था. ऑलमोस्ट क्लियरली क्राउन वॉज अबाउट टू टेक ओवर द पावर. 76.
Which of the following led to the introduction of English education? Charter Act 1813, General Committee of Public Instruction, and Orientalist Anglicist controversy. All the three, huh? Good. एजुकेशन तो एक अलग से टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में, ठीक है. अब नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853. पार्डन? नहीं, मतलब गवर्नर की तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें 3 मेंबर्स हैं. अब 4th मेंबर बन गया लॉ मेंबर. तो बिगिनिंग ऑफ द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. तो जब लॉ मेकिंग वाले वर्क होंगे तभी वो बैठेगा. हाँ, नो राइट टू वोट. किस? नो राइट टू वोट फॉर द लॉ मेंबर. वो एग्जीक्यूटिव थे तो वो तो शुरू पहले से ही चल रहा था, ठीक है. सो नाउ चार्टर एक्ट ऑफ, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, ठीक है. राइट, नॉट मच चेंजेस. राइट, फिर भी वॉट एवर आर द चेंजेस यू कैन राइट. First thing is, law member became full member with right to vote. Next, the introduction of merit-based civil services, ending patronage on the patronage. पहले जो throne open to Indians था तो वो nomination patronage था. Ending patronage on the basis of the recommendations of Macaulay Committee. पैट्रनेज मतलब ऐसे बांटना. पहले सिविल सर्विसेज में इंडियंस नहीं थे, पिछले एक्ट में इंडियंस इंक्लूड किए, लेकिन इंडियंस को तुम एज अ पैट्रनेज दे सकते हो, जैसे जाओ तुम बन गए राय बहादुर, लेकिन वो तो अलग टाइटल से, बट यू विल बी, ठीक है. लेकिन अब मेरिट बेस्ड होगा. कंपटीशन स्टार्टेड. अब और चेंजेस हैं जो कुछ खास नहीं है, बट ये रख सकते हो. क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन इंडिया. Next, the number of members in the court of directors was reduced from 24 to 18. Now 6 members to be nominated by British गवर्नमेंट. ये तो हमें नहीं लगता कुछ सिग्निफिकेंट है, ठीक है. तो इसमें क्या चीज़ सिग्निफिकेंट है? बस मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज. और भी कुछ था? लॉ मेंबर.
यहाँ पे, अच्छा ठीक। So now let us see Government of India Act 1858. Government of India Act 1858. अब ये भी इलेबोरेट नहीं है, इट इज़ वेरी ब्रीफ एक्ट, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट इसका सिग्निफिकेंस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडिया, full stop, right. Act abolished East India Company. ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब डैश करके लिखो, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल एडमिनिस्टर on behalf of Crown right, to be assisted by member council known as Council of India or India Council, whatever, Council of India और India Council। इसके बाद जो एक्ट बन गए वो बन गए इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट, गवर्नर जनरल टू बी नोन एज वाइसरॉय। To be known as Viceroy. Yeah. Viceroy was in India. Secretary of State was in Britain. Secretary of State. Secretary of State, Crown, under Crown, Secretary of State, and reporting authority, Governor or Viceroy will report to the Secretary of State, और Secretary of State will work through India Council, तो इसीलिए Indian Council Acts बनने लगे। या Secretary of State, ब्रिटेन में मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीज ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके। ब्रैकेट में लिख दो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक तरीके का मिनिस्टर ही हो गया ना, मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें और देयर वाज नॉट मच चेंज बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। सो नाउ लेट अस सी इंडियन काउंसिल एक्ट्स। इंडियन काउंसिल एक्ट्स रुको बता रहे हैं। एक्चुअली एक बड़ा सा चार्ट लेना घर पे और सारा ऐसे ब्रांचिंग करते रहना, खुद ही चार्ट बना सकते हो इसका, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं, आई सी, ठीक है। तो पहले था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सब खत्म,
ब्रिटिश क्राउन। तो एक तरीके से मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, इसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में। इसकी हेल्प के लिए हो जाएगा इंडिया काउंसिल। ठीक है, अब ये किसको डायरेक्ट करेगा? वाइसरॉय को। वाइसराय की अपनी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डायरेक्टली नहीं, वाइसराय इधर और ये इसको, समझ गए? तो वाइसराय कहाँ है? इंडिया। सेक्रेटरी ब्रिटेन में। ठीक है, now how many Indian Council Acts? Three. Okay, first write 1861, 92, 1861, 1892 and 1909। तो यही है सबसे खतरनाक। ठीक है, कौन सा ये? मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। खतरनाक क्यों? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, हाँ डायरेक्ट इलेक्शन भी, बट वो तो खतरनाक नहीं, खतरनाक हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अब लिखो 1861। इसका सिग्निफिकेंस यू राइट। ठीक है, सिग्निफिकेंस है ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट। ग्रेन जस्ट एक दाना, बीज, ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट। अब ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट मतलब along with officials, non-officials, nominated also started। पहले nominated, फिर indirectly elected आएंगे फ्रॉम बंगाल चैम्बर या लोकल बॉडीज, फिर 1909 में कैसे आ जाएंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड। और तीनों काउंसिल्स में क्या क्या आएगा? पहले लाइक यू कैन डिस्कस बजट, उसके बाद यू कैन पुट क्वेश्चंस, क्रिटिसाइज बजट। तो ग्रेजुअली लेजिस्लेटिव प्रोसेस और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और उसका स्टार्ट है इन दीज एक्ट्स में। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट इज 1861। इन 1861 राइट फर्स्ट ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट यू हैव रिटन। तो फर्स्ट लिखो चेंजेस एट सेंटर। at center। तो सेंटर में कौन है? वाइसरॉय। और वाइसरॉय की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो चेंजेस हियर, चेंजेस हियर, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। inclusion of non-official
members. मतलब यहाँ तो बिजनेस है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ओके यू कैन राइट इट लाइक दैट. एग्जीक्यूटिव रिमेन लाइक दिस. यहाँ पे लिखो व्हेन ट्रांजैक्टिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेस, when transacting the legislative business, non-officials were added. Non-officials were added. तो non-officials मतलब ब्रैकेट में लिखो nominated by British government. Nominated by British government. It can be any, but obviously officials के अलावा Indians हैं, princely states वगैरह जिसके भी लाने हैं, तो basically Indians हो गए. ठीक है, grain, but nominated हैं. Next में आएंगे indirectly elected, उसके बाद आ जाएंगे directly elected. ठीक है, nominated. Now legislative council. Legislative council, right? It was neither representative nor deliberative. मतलब उसका नेचर क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो छोड़ ही दो, वो तो एज इट इज है. लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल्स के साथ साथ नॉन ऑफिशियल्स आ गए, ये लिखा. लेकिन इस काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है, नो लॉ मेकिंग पावर. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिखो नाइदर डेलिब्रेटिव बॉडी नॉर रिप्रेजेंटेटिव. नाइदर डेलिब्रेटिव नॉर रिप्रेजेंटेटिव, इसका कोई काम नहीं था. ठीक है, इसमें अब क्या काम था इनका? दे कुड कंसीडर द प्रपोजल्स, दे कुड कंसीडर द प्रपोजल्स. ठीक है, बट नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस. comma, no criticism. Is this clear? अब लेजिस्लेटिव काउंसिल या बिजनेस में ही ऐसे लिखो पावर्स ऑफ वाइसरॉय. पावर्स ऑफ वाइसरॉय. वाइसरॉय के पावर्स. फर्स्ट, सर्टेन बिल्स could be introduced only with the prior consent of Viceroy. Next, Viceroy could reserve any bill for the consideration of the Crown. Next, Viceroy could veto any bill. Veto any bill. Next, Viceroy could legislate by ordinances. By ordinances. कुल मिला के रियल पावर वाइसरॉय.
समझ लो जैसे दिल्ली सरकार, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली पावर्स, ये समझ में आया? नॉमिनेट किंग्स विंग्स को कर दो। ऑफिशियल मेंबर्स तो इलेक्टेड बाय द सिविल सर्विसेज, ठीक है, ब्रिटेन में भी होता था, ब्रिटेन ही में होता था ना एग्जाम, उस पहले ओनली ब्रिटिशर्स, लेटर ऑन इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में, या पार्डन, ऑल पावर्स। सी दिस एक्ट, what happened was, इस एक्ट का मेन थीम क्या है? पॉपुलर ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट, मतलब इंडियंस को इंक्लूड करना स्टार्ट किया इन लेजिस्लेटिव बिजनेस, ठीक है। तो इंडियंस, बट इंडियंस इलेक्टेड थे नहीं थे, कौन से थे? नॉमिनेटेड। हु वॉज नॉमिनेटिंग? ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्लस एग्जीक्यूटिव में कुछ नहीं था, उसमें उनका अपना था, इंडियंस काउंसिल में हो सकते थे, तो काउंसिल में गवर्नमेंट प्रपोजल्स रखते थे काउंसिल में, बट यू कुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, यू शुड गो एंड जस्ट लिसन, तो तुम्हारा जस्ट एक प्रेजेंस है। तो रियल लेजिस्लेटिव पावर्स लाइज विथ गवर्नर और वाइसरॉय। What changes you want to know? हाँ, बट नेम चेंज हो गया केवल, वाइसरॉय अपॉइंटेड बाय द क्राउन डायरेक्टली, ठीक है। पहले गवर्नर था और ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन था, तो नाउ दैट इज गॉन, वाइसरॉय अपॉइंटेड डायरेक्टली, और वाइसरॉय had a real power. Okay, so now changes at the provincial level, you write changes at the provincial level. तो अब तक सेंट्रलाइजेशन था, अभी थोड़ा रिवर्सल स्टार्ट हो गया, राइट? Reversal started, comma, slow shift of powers towards provinces, shift of powers towards provinces. So earlier legislative powers were taken by the provinces, now it is restored, and all changes which were made here were made there also. There also non-officials were added. तो आगे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? more and more powers to provinces. तो जब डायरकी आ जाएगी, उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी, तो प्रोविंसेस को फिर से पावर, बिकॉज नाउ योर गवर्नमेंट इज कंसोलिडेटेड, सो फॉर बेटर गवर्नेंस यू हैव टू गो फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, so devolution started. Is this clear? Right? इन्हीं में क्या हुआ? right? Similar legislative changes were introduced. ठीक है, सिमिलर क्या चेंजेस होंगे? नॉन ऑफिशियल्स एडेड, दे कैन कंसीडर द प्रपोजल्स विदाउट एनी राइट टू वोट. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थे ना गवर्नर्स, governors were continuing, but governors didn't have any legislative power. All legislative power went to the center, तो implementing authorities रह गए.
एक तरीके के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन यूनियन टेरिटरी टाइप। फिर से रिवर्सल हैज स्टार्टेड, तो फिर से पावर 35 तक काफ़ी पावर दे देंगे प्रोविंसेस को। नेक्स्ट, एज अ नोट यू राइट, दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम, introduced portfolio system. तो different members of the council will hold different portfolios. ये prelims में आ सकता है, portfolio system. Different portfolios, कोई home है, ये है portfolio system. Now you next see India Council Act 1892. Indian Council Act 1892. अब लिखो Y, right? Demands made by the moderates. Now significance. Right, beginning of parliamentary democracy. ठीक है, राइट। नेक्स्ट एक और लिखो, मॉडरेट्स डिमांडेड डायरेक्ट इलेक्शंस। बट द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, अब लिखो चेंजेस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। डायरेक्ट में तो हमने अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया, जैसे लोकसभा में। इनडायरेक्ट है, हमने किसी को इलेक्ट किया, वो जाके फिर इलेक्ट करेगा। तो यस, नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम किसी को इलेक्ट ही नहीं कर रहे, हम खुद जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में देयर कैन बी टू टाइप्स, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट हो गया इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्शंस का अगर नाम भी आ गया तो वो डायरेक्ट नहीं होती डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर? सो इफ इलेक्शन देन इट इज रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन करोगे किसका? रिप्रेजेंटेटिव का ही तो करोगे। ठीक है, तो अब चेंजेस। तो बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई खास काम ही नहीं रह गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस। Changes at the center and provinces. Right, यहाँ पे लिखो, official majority remained. Official majority remained, but non-officials
but non-officials to be indirectly elected rather than direct elections, sorry, rather than nominated as earlier. कितना ग्रेजुअल, मतलब बिल्कुल तड़पा तड़पा के एक एक चीज कर रहे। इंडियन कुछ भी, कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब हु विल इलेक्ट देम, ठीक है, राइट, दे वेयर इलेक्टेड बाई सेंटर वाले, दे वेयर इलेक्टेड बाई, फर्स्ट लिखो, members of the provincial legislative councils, members of the provincial legislative councils। तो अब कितना इनडायरेक्ट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे लोकल से, लोकल से प्रोविंशियल, प्रोविंशियल से ये वाले, ठीक है। और सेकंड कहाँ से इलेक्ट हो रहे थे, एक तो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब प्रोविंशियल लेवल पर देखो, फिर यहाँ पर भी राइट, ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन्ड, ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन्ड। नेक्स्ट, members were indirectly elected by local bodies, municipalities, district boards। और ये वाले मेंबर इनको इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफिशियल मेजॉरिटी फिर भी रिटेन है। अब फंक्शंस के फॉर्म में पैरेलल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल प्लस नॉमिनेटेड, संख्या किसकी है, ऑफिशियल्स की ही ज़्यादा है, ठीक है। अब फंक्शंस के टर्म में एट सेंटर एंड एट द प्रोविंसेस सेम, ओके, it's a different thing, ultimate authority lied with the central government, but functions, जैसे here they gave legislative council power to discuss the budget, same thing here, ठीक है। तो लिखो next सब heading लिखो, changes in legislative functions। right, similar changes at both the levels तो समझ में आ गए, similar changes। तो right, now members got power to discuss and ask questions to the executive including on the budget,
बजट। तो इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेन ऑफ देखो वायसराय रियल अथॉरिटी है सेंटर, और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर भी अल्टीमेटली पावर तो वायसरॉय की है। अब यहाँ पर है गवर्नर, गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। नॉमिनेटेड में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन दे दिया। तो काउंसिल के पास फंक्शन क्या है? काउंसिल कोई बजट नहीं बना रही है। पहले तो बस आके पढ़ना था और चुपचाप जाना था, ठीक है। अभी क्या है, अपने क्लास जैसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर राउंड हो गया। लॉ तो वाइसरॉय, लॉ जिस लेवल पे यहाँ पे गवर्नर बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विद हिज काउंसिल। काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले भी हैं। तो नॉमिनेटेड वे आर डूइंग व्हाट? नॉमिनेटेड वे आर जस्ट डूइंग क्वेश्चन। अभी समझ में आया? कौन बना रहे लॉ? गवर्नर, और उसके साथ है काउंसिल, जैसे हम और हमारे टीचर्स, ठीक है। हम लोग मिलके बना रहे नोट्स, तुम लोग को भी ऐड कर दिया है। अब वो वाले नोट्स में तुम्हारा क्या काम है? पहले आके चुपचाप पढ़ना है, ठीक है, सुनना है और जाओ। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो बस क्वेश्चन सिस्टम स्टार्ट हो गया। अभी समझ में आया इनका? अब लिखो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स। Point number 1, failed to satisfy the moderates. Because they were demanding direct elections. Right, next. Right, however, Indian leaders got opportunity to reach to the council and present Indian point of view. तो अभी तक जितना पढ़ा सब मिल तो नहीं गया? हाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता रहा। उसके बाद क्या बन गया? सेक्रेटरी ऑफ, पहले मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स बनाया, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। और प्रोविंसेस में क्या चल रहा है? पहले प्रोविंसेस वेयर इंडिपेंडेंट, प्रोविंसेस के पावर्स सेंटर में, फिर सेंटर से ग्रेजुअल प्रोविंसेस, फिर गवर्नर, इनिशियली गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, almost similar situation, but then governor became important. After that, और इधर separation of, gradual separation of companies, commercial and administrative. Commercial में gradually monopoly will end and British government taking over the company's territory, making company just a मैनेजर टू एडमिनिस्टर द अफेयर, और वो भी फाइनली डायरेक्ट अफेयर्स। फिर आ गया
वाइसरॉय कंसेप्ट, सेंट्रलाइजेशन, बट धीरे धीरे गिविंग रोल्स टू इंडियंस। तो पहले हो गया नॉमिनेशन, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, फिर ऐसे ही इनिशियली बजट देख सकते हो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो। तो फिर ये सब याद रखना है, कब क्रिश्चियन मिशनरीज, लेकिन अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है। तो मेंस में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? प्राइमरीली डायरकी और 35, इवन 1909 भी आ सकता है। बस 3 ही मेंस के लिए प्रिपेयर करने, ठीक है। तो ऐसे एक चार्ट घर पे बनाओगे ना, बड़ा सा अखबार साइज का, उसी से हाँ बना के दे दें। अच्छा, फोटोकॉपी कैसे होगी उसकी? सॉफ्ट कॉपी, चलो देखते हैं। सो नाउ who were allowed to vote. So vote was very limited and there were property and educational qualifications. Just 5-6 हज़ार लोग शुरू में वोट कर पाते थे, तो 5-6 हज़ार पूरे इंडिया में वोट कर रहे हैं। वो लोग वोट कर रहे हैं लोकल वालों को, लोकल वाले, it was so limited, it was hardly a representative institution. So now India Council Act 1909. Who was first viceroy? Lord Canning. 1909. अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो एंड वी विल आफ्टर द डिस्कशन वी विल सी कि ये क्वेश्चन लिख पाते हैं कि नहीं। राइट द क्वेश्चन। राइट, रिफॉर्म ऑफ 1909 could offer no answers, comma, could not offer any answers to the questions to satisfy the sentiments of Indians. Neither offered nor could offer any solution to satisfy the sentiments of Indians. लिखो comment या critically examine। एक तो ना दिया ना दे पाता, neither it gave nor it could afford to give any solution. Why it could not afford and all, वो तो डिस्कस करेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट्स, सो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ऑल्सो नोन एज, हु वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? लॉर्ड मिंटो। और मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड, हाँ, मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये भी देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड में, तो ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म नहीं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सेक्रेटरी का नाम पहले आता है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो वॉज वाइसरॉय। अब वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके रीजंस क्या हैं? 1909, व्हाट कुड हैव बीन द रीजंस? सो dissatisfaction with the moderates, partition of Bengal, rise of extremists, and very successful
स्वदेशी मूवमेंट, तो क्या करना था, और स्वदेशी मूवमेंट में फिर हिंदू मुस्लिम वेयर टुगेदर, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो डिवाइड द यूनिटी, दैट इज वाई इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट. सेकेंड थिंग इज टू अपीज मॉडरेट्स, ठीक है, टू मार्जिनलाइज द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज. सो it emerged because of the conditions. So basic objective was Britishers interested in introducing any representative responsible government? No. So neither they could nor they had offered. ठीक है, तो Morley Minto reforms you can just write. Okay, so first of all write why. First write policies of Lord Curzon. Policies of Lord Curzon. ठीक है, partition of Bengal, basically partition of Bengal. Then growing influence of extremists. Growing influence of extremists. अब लिखो पर्पस या एम क्या था? फर्स्ट, to create divisions among Indians. As a note you can write, in 1906 when Muslim League was formed, 5? Huh? 6? Right. Anyway, in 1906, the delegation of Muslim leaders met Viceroy in Shimla to explain the political importance of the community. ठीक है, so write next, the act introduced separate communal electorate for Muslims. Second aim क्या था? Right, to appease moderates, APPEASE, appease the moderates, to marginalize the influence of extremists. Influence of extremists. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का? सिग्निफिकेंस, right, the introduction of representative element for the first time
representative element for the first time. ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट इलेक्शंस. However, electorate was very limited. Electorate was very limited. Second, next, right, seeds of communalism. Seeds of communalism. Seed, S-E-E-D, seeds of communalism. अब यहाँ पर more far-reaching changes were at the provincial level. Greater control over center. तो provincial level पर ज़्यादा changes introduce हो गए. तो center पर official majority was maintained, but at the province non-official were increased in number. Next, third लिखो, more advanced changes at provincial level. अब लिखो how. Right, while official majority was retained at the center, comma, official majority had gone at the provincial level. ठीक है. अब लिखो चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर्स. है ये पॉइंट ये है कि ज़्यादा एडवांस लेवल पर रिफॉर्म यहाँ नहीं थे, यहाँ थे 1892 में. अब 1861 में क्या है, ऑफिशियल प्लस नॉमिनेटेड. ये नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है, ऑफिशियल. फिर ऑफिशियल प्लस इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंसेस एंड ऑल, बट मेजॉरिटी इन्हीं की है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्ट में ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल, लेकिन मेजॉरिटी official, but at provincial level official majority gone, non-officials were in majority. तो non-officials increasing in number मतलब हो गया Indians are more in गवर्नमेंट अपॉइंटेड या गवर्नमेंटल, जो भी गवर्नर जनरल को एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कमिश्नर्स यूज्ड टू बी देयर. ब्रिटिश गवर्नमेंट. हाँ नहीं, ऑफिशियल्स हो गए ना, जैसे कमिश्नर, सेक्रेटरीज, जो भी है सिविल सर्वेंट्स, और ये नॉमिनेटेड हैं. राय बहादुर या अपने प्रिंस, अपने सपोर्टर्स को डाल सकते हैं ना. ओके इसमें सिविल सर्वेंट्स में इंडियंस भी आ सकते हैं. ऑफिशियल्स एंड नॉमिनेटेड. नाउ इट इज क्लियर. तो मोर प्रोग्रेसिव एट द प्रोविंशियल लेवल. अब चेंजेस इन लेजिस्लेटिव फंक्शंस. तो पहले क्या था, जस्ट कंसीडर. नाउ क्वेश्चन. अभी दे वेयर गिवन पावर टू ब्रिंग रेजोल्यूशंस ऑल्सो. ठीक है. तो राइट सिमिलर चेंजेस एट बोथ द लेवल्स.
right? Now members could bring resolutions on the budget. Next, they could discuss all the matters related to the administration of India, except related to first princely states, foreign relations, and armed forces. और ऐसा नोट करके लिखो, नोट, फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड Indians in Viceroy's Executive Council also. Okay. Now write what was the response. Right, opposition from the Congress, because it sowed the seeds of opposition from the Congress because it sowed the seeds of communalism, sowed the seeds of communalism. ठीक है, राइट, व्यूज ऑफ पंडित नेहरू. Right, it reversed the process that was going on from centuries. मतलब two communities living together in peace. Next लिखो views of K.M. Munshi. K.M. Munshi. Right. It stabbed the rising democracy. Stabbed, S-T-A-B-B-E-D, stabbed the rising democracy. अब नेक्स्ट लिखो व्यूज ऑफ लॉर्ड मॉर्ले. Right, we are sowing the seeds of dragon's teeth. What is dragon's teeth? Huh? We are sowing the seeds of dragon's teeth and harvest will be bitter. Harvest is going to be bitter.
नेक्स्ट, अरे वही मतलब देखो लिटरल मीनिंग, आई जस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैगन्स टीथ, तुम्हारे पास तो है, देखो मतलब वही है कि तुम तूफान उफान स्टैब्लिश कर रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, अ ट्रबल फॉर इंडियंस, ठीक है, बट लिटरल मीनिंग आई जस्ट फॉरगॉट, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ड्रैगन्स टीथ, some inviting troubles or problems. Now अब लिखो रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, नाइनटीन 18, report of the Committee on Constitutional Reforms 1918. Right, first it has reversed the process of history, next perpetuated class divisions among Indians, right, created the camps against each other, camps against each other, camps against each other. अब लिखो ओवरऑल रिस्पॉन्स, ओनली मुस्लिम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाकी कम्युनिटीज, और लास्ट में जाके 35 में हिंदूज को भी डिवाइड, पहले इंडियंस को डिवाइड कर दिया among the religious communities, जब इंडियन सारे डिवाइड हो गए तो हिंदूज को माइनॉरिटी में करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ, क्लास डिविजन्स मतलब they are just using this term, but it was communal division, you can understand. No. It was not literal class, they want to say communal divide. Now overall reaction, right, dissatisfaction with the reforms, dissatisfaction with the reforms. Right, why? Right. Right, Indians were demanding right parliamentary democracy, but reforms were just shadow of the substance. Right, it was just a benevolent despotism. Benevolent despotism. Benevolent despotism. मतलब democracy चाहिए, or they have introduced despotism to look that it is in the interest of the Indians, but no real power into the hands of the Indians, even if they can discuss the budget, bring resolutions, but they cannot determine the budget. So Indians were not in any decision making
situation. So when diarchy came at provinces, ministers were made, but again diarchy was prepared in such a manner that it aimed at frustrating the Indian efforts. Okay, so this is like overall analysis. अब ये अगर क्वेश्चन है रिफॉर्म ऑफ इंडियंस रिफॉर्म ऑफ 1909, नाइदर ऑफर्ड नॉर कुड ऑफर. तो नाइदर ऑफर्ड तो यू नो, नॉर कुड ऑफर मतलब they could give Indians the what Indians demanded at that point of time, Swaraj, but Swaraj was the dominion status. Why they could not give? Huh? Colonial, क्योंकि जो इंडिया को क्या माना जाता था, ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन. नो अदर कॉलोनी वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज इंडिया. सो ब्रिटिशर्स वांटेड टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड देयर इंटेंशंस वॉज नॉट टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट but to take the benefit of the situation which was prevailing, and in appearance it was for introduction of the responsible government, but actually it was stabbing the rising tide of democracy. So they have brought this act not for the interest of Indians but for the interest of the British Empire. So their intention was also not like that. ये statement, critical analysis means, is this statement correct? Very much correct, because they were saying something but doing something else. Britishers were bringing constitutional reforms not for the benefit of Indians but to maintain the soft face of the British Raj, exploit the existing situations and manipulate it to the advantage. Okay, so tomorrow we'll see how to write this particular answer. ठीक है. Deliberation मतलब discussion, debate, democracy से linked होता है वो. कॉन्स्टिट्यूशन समाज का शब्द लिया है, अगर प्री मैम करनी है तैयारी तो एक तो क्लास नोट्स हो गए,